Good morning. Can you hear me? Can you hear me, Lakshay? Hi, Jaydev. Can you hear me? Good morning. Am I audible? Okay, thank you. Thank you for the response. So, in today's session, we are going to discuss misplaced modifiers in detail. Okay, so that is the agenda. Okay, so let's quickly get started. Um, So before we proceed, let me quickly introduce myself. My name is Juhi Narula. I have 12 years of experience in training students for CAT, GMAT and GRE. I also happen to be a life skills coach and a content creator. I've done my bachelor's in technology and master's in business administration. So this is the Telegram channel. Please join the Telegram channel so that you get all the notifications about the upcoming sessions. Right. So apart from our wonderful sessions that we offer on special classes and our YouTube sessions, on YouTube from today we are starting Achievers batch and we are going to do Parajumbles today. So please do join there also. So we also offer you two subscriptions that we call Plus and Iconic. So in Plus subscription, we offer you live classes, there are weekly tests, there's unlimited access. So if you have enrolled for one course, you can still access other courses as well. And there are structured courses. If you are going for Iconic, then you have all the benefits of Plus. Apart from this, personal guidance is provided. There are detailed test analysis, expert guidelines, study material offered, and study planner. So all these are basically the benefits of Iconic. So if you're going for Plus subscription, the fees for 6 months is 16,400. For 12 months, it is 22,550, and for 24 months, it is 32,800. And if you're going for Iconic, the fees for 12 months is 39,500. For 24 months, the fees is 59,999. And you can use the code JNLive10 to get a 10% off on any of the subscriptions. Okay. So for IPMAT and BBA and hotel management aspirants, we are there on Telegram, and there are a lot of interesting things happening on the channel. So there are important news and updates, subject-wise quizzes are there, live tests, tips and tricks to prepare for exam, updates about the class schedule. So all these would be really amazing. Okay. So let's quickly start with modifiers, very, very important. Before we proceed, let me quickly tell you that, since beginning I've been trying to explain this, that whatever errors we are doing, they are somewhere originating from the concept of parts of speech only. So like I said, subject verb agreement is going to come basically from, nouns and what? Pronouns and verbs. We have already done pronoun ambiguity, that comes from pronouns. So now we are going to see very interesting concept. We'll quickly go through the concept and solve some questions. So you'll be able to see the application. I want to keep the sessions very crisp and to the point because the dates have been announced, and we need to really pull ourselves well so that we do maximum utilization. So misplaced modifiers origins from adjectives and adverbs. अब पहली बात एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्या होता है. सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स or qualify nouns, right? So if you see hungry boy, so hungry is an adjective. Is defining how is the boy hungry. Beautiful flowers, how are the flowers? Beautiful. French doors, how do the doors look like? French. And old lady, so how is the lady? Old. Or if I say intelligent Nirbhay, lovely Ritika, talented Shweta, or hardworking Mudit, or if I say brilliant Natasha, or if I say mysterious Stone, or if I say a wonderful Harsh. So all these are adjectives that you are placing before the nouns, right? So these are adjectives. I hope we are clear with the role of adjectives, right? If there is any doubt, you can ask. You can have multiple objectives. So like the monster is giant and green, you can separate it using the comma. Tiny frightened mammals, so the mammals are tiny also, they are frightened also, so you can separate them using a comma. I hope we are clear here. If there is any doubt, please go ahead and ask, otherwise I move to the next concept. Chale? Any doubts? Okay.
Now we come to adverbs. So adverbs help us answer the question how. So basically our understanding of adverbs have always been that adverbs are words that help us. Yes. So adverbs हमारी अंडरस्टैंडिंग से वर्ब्स को क्वालिफाई करता है. दिस इज नॉट रॉन्ग बट इट इज पार्शियली करेक्ट. सो यू हैव वर्ब्स. एडवर्ब्स वर्ब्स को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा. टू टेक्निकल, एक बार लेट्स क्विकली सी द एग्जांपल्स. So if I say she runs quickly. Please see to this example. She runs quickly. तो she तो सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, या प्रोनाउन है. एक्शन क्या हो रहा है? रन्स. तो ये क्या हो गया सेंटेंस में? वर्ब. आई डिड टेल यू वर्ड्स दैट टेल यू अबाउट द एक्शन, यू कॉल देम वर्ब्स. क्विकली. सो हाउ इज शी रनिंग? कैसे भाग रही है वो? क्विकली. Right, so what is happening is quickly is an adverb that is defining this verb. I hope we are clear with this example. Quickly is an adverb. So in this first instance that we are doing, we are seeing that the verb is runs, and what is the adverb? Adverb is quickly. So इसमें क्या हो रहा है? Quickly is basically defining the action, right? So this is the first usage. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. मैं इसी सेंटेंस को स्लाइटली चेंज कर देती हूँ, एंड आई से शी रन्स वेरी क्विकली. So I'll say she runs very quickly. Now she is basically still the pronoun or the subject. Runs verb hai. Quickly is still an adverb to the verb. And how quickly is she running? You will say, ma'am, very quickly. So in this case, how quickly? Very quickly. So very is an adverb which is qualifying another adverb which is quickly. So are you able to see? So runs को describe quickly कर रहा है और quickly को describe very कर रहा है. So an adverb can also qualify or describe another adverb. Is this example clear to everybody? Natasha, Nirbhay? चलो ठीक है. So let's see the third usage. Now if I say she is a very talented girl. Okay, if I say she's a very talented girl, so in this case she is basically still the subject. Is the verb, right? Girl noun है, talented girl को define कर रहा है, तो girl noun है. तो talented का role क्या हुआ? Talented तो adjective हो गया. I hope you are able to see talented is describing girl. So talented is an adjective. Now if I say how talented, you will say, ma'am, very talented. So very is what? An adverb in this case. So is the verb. She is the subject, or you can call it pronoun, however. And so in this case, the third usage. So this is the second application. Third application is that an adverb can also define an adjective. So what is the adverb? Very. And what is the adjective? Talented. Is there any doubt, anyone? Stone and Shweta and all the students who are attending the sessions. Any doubts, anything that is not clear here, you can please go ahead and ask. Any doubts, anybody? Okay. So yeah, the same examples like I explained it to you. Now we come to this term modifiers. So what are modifiers? Modifiers are basically words, phrases. Phrases क्या होता है? Group of words को phrases कह देते हैं, या clauses. तो phrase और clause में क्या difference है? phrase में या तो verb नहीं होगा या फिर subject नहीं होगा. clause में subject भी होता है, verb भी होता है. Like I say, gazing out of the window, ये एक phrase है. आपको याद होगा, we have done prepositional phrase in subject verb agreement. So on the table, during the war, राइट, इन द मीटिंग, ये सब फ्रेजेस है. वंस अपॉन अ टाइम, ये सब फ्रेजेस है. और आई ईट बनाना, ये क्लॉज, राइट. सो मॉडिफायर्स क्या है? वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो डिस्क्रिप्शन ऑफर करते हैं. वेरी वेरी इनकरेक्ट होता है. वेरी फास्ट वुड बी करेक्ट, जयदेव. ठीक है.
सो व्हाट डू वी डू, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपको ये वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो आइदर अ वर्ड, फ्रेज और अ क्लॉज, इफ इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, इट फंक्शंस लाइक अ मॉडिफायर. तो मॉडिफायर क्या है, एनी वर्ड, तो कोई भी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह बिहेव करता है तो वी कॉल इट अ मॉडिफायर. सो आर वी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मॉडिफायर? एनी डाउट? मॉडिफायर क्या होता है? इज दिस क्लियर एवरीबडी हुज इन द सेशन? नताशा, मुदित, रितिका, गुड़िया, एनीबडी एंड एवरीबडी हुज इन द सेशन. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो. हाँ, एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है. आई एट क्लॉज है, ठीक है. चलो, सो देखो, गेजिंग आउट द विंडो, रॉस मिस द होमवर्क. सो हु वाज गेजिंग आउट द विंडो, ये रॉस के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो गेजिंग आउट द विंडो मॉडिफायर हो गया. Invented by Edison, what was invented by Edison? The bulb. So invented by Edison is basically explaining that the bulb was invented by Edison and Ross was gazing out the window. Example समझ में आ गया? Somebody asked for the example. ठीक है, चलो. Now we are talking about this term misplaced modifiers. Before that, this is an amazing feature on the app. Start कर दो use करना. Go to the app, select ask a doubt, select the question, crop the question and select the section from where the doubt is coming. Please start using it. Right, अब एक term देखो, misplaced modifiers. इसका पहले मैं एक simple example देती हूँ, फिर आपको ये examples दूंगी मैं. So if I say obsolete, इसको obsolete पढ़ना, and a little dull, I opted out of my French class. So in this case, अगर आप इस सेंटेंस को टेक्निकली लॉजिकली इंटरप्रेट करोगे, लॉजिक से, तो आप ये इंटरप्रेट करोगे कि भाई ऐसा हो रहा था कि मेरी जो फ्रेंच क्लास थी वो बोरिंग थी, तो मैं बाहर निकल आया. आई ऑप्टेड आउट, मतलब मैंने पढ़ा नहीं उसमें. दिस इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, राइट? यस, करेक्ट रितिका. तो अब ऑब्सोलीट एंड लिटिल डल मॉडिफायर है. अच्छा, जब हम बोलते हैं इंटेलिजेंट को, इंटेलिजेंट बॉय को, तो इंटेलिजेंट किसको रेफर करता है? बॉय को. अब मैं ऑब्सोलीट एंड लिटिल डल बोल रही हूँ, तो ये मॉडिफायर किसको टच कर रहा है? ये मॉडिफायर आई को टच कर रहा है. तो यानी कि ऑब्सोलीट और लिटिल डल कौन है? मैं हूँ ऑब्सोलीट और लिटिल डल. आई मीन, ठीक है, एम whatever you say. So the sentence, practically this modifier is explaining I to be obsolete and little dull. That's not what the sentence is trying to say. ये एक modifier है और उसका placement proper नहीं हुआ. That is the reason you have called it a misplaced modifier. बात आ रही है आपको समझ में? This is a modifier, obsolete and little dull. इसका placement correctly नहीं हुआ. That is the reason misplaced. Placement is miss, and miss is the negative root, so you call it a misplaced modifier. Correct कैसे करेंगे? Modifier को उस word के आगे रख दीजिए जिसको ये modify करना चाह रहा है. So I opted out of my obsolete and little dull French class. Is this clear to everybody? समझ में आया what is misplaced modifier? मॉडिफायर की प्लेसमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो रही है तो यू कॉल इट मिसप्लेस मॉडिफायर. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल टेक सम मोर एग्जांपल्स. क्लियर है? चलो, वेरी गुड. अभी एग्जांपल देखो, शी रेड फ्रॉम हर न्यू बुक वेयरिंग ग्लासेस. तो वेयरिंग ग्लासेस फ्रेज है. हु इज वेयरिंग ग्लासेस? बुक इज वेयरिंग ग्लासेस. कैन बुक वेयर ग्लासेस? तो आपको एरर समझ में आ गया. किसको टच करना चाहिए था? शी को. Right, she was wearing glasses, not the book. I hope we are clear with this example. Right, yeah, correct Ritika. Wearing her glasses, she read from the book. So wearing her glasses is touching she now. I hope this example is clear to everybody. कोई doubt है तो बताओ, नहीं तो let's move ahead. चलें? चलो, शाबाश. So how do you fix the error? ये इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना if you feel the need. Locate the modifier next to the appropriate word. So एक example और देखो. The farmer wanted to hire someone to take care of his horse who does not smoke or drink.
सो हु डज नॉट स्मोक और ड्रिंक किसको टच कर रहा है? हॉर्स को। तो वो ऐसा घोड़ा ढूंढ रहा था जो स्मोक या ड्रिंक नहीं करता था, या सेंटेंस ये कहना चाहता है कि उसको, उस समवन को हायर करना चाहता था जो स्मोक और ड्रिंक ना करता हो। आई होप यू आर एबल टू सी द एरर्स। ठीक है, सो फार्मर्स शुड नॉट ड्रिंक और हॉर्स शुड नॉट ड्रिंक और स्मोक, नो, दैट्स द प्रॉब्लम। The farmer wanted to hire someone who does not smoke or drink to take care of his horse. I hope this is clear. ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आती है डैंगलिंग मॉडिफायर। तो ऐसे बस आपको परेशान करना है, इसलिए ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस डाल दी, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज इजी। देखो, डैंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है? मॉडिफायर एक वर्ड को टच करता है, पर उस सेंटेंस में वो नाउन ही नहीं है जिसको वो मॉडिफाई करना चाहता है, वो वर्ड ही नहीं है जिसको मॉडिफाई करना चाहता है। देखो, वाइल स्लीपिंग द फोन रैंग, ये सेंटेंस है। अब इसके हिसाब से वाइल स्लीपिंग मॉडिफायर है और ये फोन को टच कर रहा है, तो कौन स्लीप कर रहा है? फोन। अब मैं सेंटेंस में कोई, मेरे पास नाउन ही नहीं है जो मैं सेंटेंस को करेक्ट कर सकूं, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, ये वाइल स्लीपिंग एक फ्रेज है, आई एम स्लाइटली गोइंग टेक्निकल, बट मैं इसको क्लॉज में कन्वर्ट कर देती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था? सब्जेक्ट या वर्ब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जयदेव, करेक्ट। तो मैंने इसको कैसे करेक्ट करा? वाइल आई वॉज स्लीपिंग, तो इस सेंटेंस में लेटर पार्ट से डिपेंडेंसी हट गई, क्लैरिटी आ गई। कौन सो रहा था? आई वॉज स्लीपिंग। सो यू विल मेक द सेंटेंस लाइक दिस, वाइल आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो, सो दिस इज डैंगलिंग मॉडिफायर। सो कैसे सॉर्ट आउट करोगे? अगर तो आपके पास मिसप्लेस मॉडिफायर है तो आप प्लेसमेंट करेक्टली कर दोगे। अगर आपके पास डैंगलिंग मॉडिफायर है तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दोगे। कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम फिर कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं, आई मीन वन लाइनर्स, एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर द प्रॉपर ऑप्शन वाला क्वेश्चंस। ठीक है, कोई डाउट? एनीबडी? क्विकली गिव मी अ पोल, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? यस अगर आंसर है जल्दी से फटाफट पोल कर लो और बताओ। थैंक यू, चलो शाबाश। नाउ लेट्स क्विकली सी सम, एक बार ना आप ये पांचों एग्जाम्पल्स खुद से करो। डोंट टाइप इन द आंसर्स, यू टेक 5 minutes एंड यू टेक सॉल्व दीज 5। आप कैसे भी आप सेंटेंस को करेक्ट कर दो, ताकि मॉडिफायर इज नेक्स्ट टू द वर्ड इट इज टेंडिंग टू मॉडिफाई। आपको लगता है वर्ड नहीं है तो आप एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो, कोई भी हो सकता है। टेक 5 minutes and quickly solve 5 questions, then we are going to discuss. Once you are done, you can put it in the comment section that you are done. और आराम से करो, सीखने के उससे करो। ये क्वेश्चंस आसान आएंगे, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। Once you know the concept, you will be easily able to do the questions.
Okay, Natasha has done. Very good, Natasha. Let's wait for one or two more. Excuse me. Let's wait for one or more responses and then we are going to discuss. Okay. Okay. So Lakshya has done, Ritika has done. जयदेव बिल्कुल करेंगे. निर्भय has done. Anybody who's still doing, जिसके लिए वेट करना है? Excuse me. मुदित ने भी कर लिया. चलो, good. Anybody who's still doing? Excuse me. At the age of 8, my family bought a dog. So who was at the age of 8? My family was not at the age of 8. Family की age 8 नहीं हो सकती, right? So how do you correct it? When I was of the age 8, or you introduce the subject, or when my brother was of age 8, right? Are you able to understand this? You are going to introduce किसकी age 8 थी, तो कोई भी subject introduce कर दो. Is this first example clear to everybody? कोई doubt है? ठीक है, चलो. Walking down the main street, the trees cannot walk ना. Trees तो walk नहीं कर सकते. Personification करना नहीं है आपको. So again, while I was walking down the main street, तो यहाँ पे भी subject introduce हो जाएगा. Both are examples of dangling modifiers. ठीक है? Being in a neglected condition, so I was not in the neglected condition, the house was, right? I hope this is clear. तो sentence को recreate ऐसे करो कि being in a neglected condition, house को touch करे. ठीक है? I hope this is clear. So this is a misplaced modifier. Any doubts, anybody? So कैसे sentence phrase करोगे? Third का कैसे correction किया? How did you phrase the sentence? How did you correct this sentence? Third को कैसे correct किया? Put it in the comment section. कौन है नेग्लेक्टेड कंडीशन में? हाउस है, तो कैसे करेक्ट करोगे? आई वॉज एबल टू बाय द हाउस इन अ नेग्लेक्टेड कंडीशन वेरी चीपली. ठीक है, वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. सो रनिंग फॉर द बस, द रेन स्टार्टेड कमिंग डाउन. तो बस, रेन तो नहीं बस के लिए रन कर सकती, राइट? सो व्हाइल आई वॉज रनिंग फॉर द बस, द रेन स्टार्टेड कमिंग डाउन इन बकेट्स. ठीक है? And having searched and searched for right, it started to seem like he did not exist. So who was searching for Mr. Right? So you have to put a subject here. While I have searched and searched for Mr. Right, it started to seem like he did not exist. Right? So you have to introduce a subject here because we don't know who has been searching for Mr. Right. While Sakshi searched and searched for Mr. Right, it started to seem like he did not exist. I hope it is clear, Jaydev. I hope it is clear to everybody who's attending the class. Guria, Ritika, Nirbhay, Natasha, Mudit, any doubts, anybody in the entire discussion? I hope we are clear with the concept. अगर हैं तो फिर हम MCQs करेंगे. And I'm deliberately keeping the grammar sections to be crisp because बहुत ज़्यादा definitions और technicalities are not needed. अब मैं आपको type of adjectives और type of adverbs बताऊं जिस पे questions नहीं आते, so it's like we are not meeting the agenda, right? So we have to keep our discussion very crisp and as per the understanding of the questions that we are going to get. ठीक है, चलो करो, quickly get started. So now see, 8 o'clock we are having sentence correction. 9 we are having reading comprehension previous year questions.
and 8 p.m. in the evening we are starting with our achievers batch. अचीवर्स बैच में हम क्या कर रहे हैं, पैरा जंबल्स कर रहे हैं आज. सो प्लीज डू ज्वाइन. पीटा करेंगे, so we'll do good number of questions, so please do join me there. And okay, before that let's solve this question. Okay, Nirbhay, let's wait for some more responses before we start with the discussion. पोल करना है, पोल करो. सॉरी. Okay, so this is how the students have performed. Let's see. दो covered in about 10 inches of thick snow. I hope आपको modifier दिख रहा है. अभी इसके बाद मुझे आपको एक और concept explain करना है. दो covered in about 10 inches of thick snow. तो कौन covered था? अगर आप पूरा सेंटेंस ग्रास्प करोगे तो वो एविएशन ऑफिशियल्स ने कहा है कि कंडीशंस ऑन द रनवे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग वाज एक्सेप्टेबल. सो बेसिकली कौन कवर्ड था? रनवे कवर्ड. एविएशन ऑफिशियल्स तो 10 इंच की स्नो में कवर्ड नहीं हो सकते ना, राइट? सो आई होप आपको एरर दिख गया. एरर किस में? इस चॉइस में है. तो हम कैसे ऑप्शन करते हैं? अंडरलाइन पोर्शन में आपको जैसे मेन सेंटेंस में एरर दिख जाए वो चॉइसेस एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें एरर रिपीट हो रहा है. तो इसमें एरर रिपीट हो रहा है, इस चॉइस को एलिमिनेट कर दिया. अब रनवे कंडीशंस नहीं थी कवर्ड, रनवे कवर्ड था, राइट? कंडीशन कैसे कवर होगी? सो ये भी एलिमिनेट हो गया. अकॉर्डिंग टू एविएशन ऑफिशियल्स इस पर्टिकुलर फ्रेज को रनवे को टच करना है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया. और देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रनवे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. कोई डाउट तो नहीं है? जब भी ऑप्शंस देखें सबसे पहले ये देखें कि आपका एग्जिस्टिंग एरर रेक्टिफाई हो जाए. हाँ बाहुबली, मैं बताती हूँ. देन नो न्यू एरर इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट? Then the next thing is आपका आंसर चॉइस का मीनिंग शुड रिमेन अनचेंज्ड. And then the third is that the answer choice should be most concise in nature. क्रिस्प आंसर होना चाहिए, रिडंडेंसी ना हो. रिडंडेंट आंसर्स क्या होते हैं? जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपीट होती है. बाहुबली देखो बेटा, तो कन्वर्टेड इन अबाउट 10 इंचेस ऑफ थिक स्नो. तो क्या कवर्ड था? ये एक मॉडिफायर है, ये एविएशन ऑफिशियल्स को टच कर रहा है. तो एविएशन ऑफिशियल्स तो कवर्ड नहीं थे, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया. अकॉर्डिंग टू एविएशन ऑफिशियल्स, अब ये भी इनकरेक्ट है. रनवे कंडीशंस है, यहाँ पे रनवे नहीं है. आप अगर सी और डी को कंपेयर करोगे, आई जस्ट रब द बोर्ड, तो जो सी चॉइस है आपकी वो बोल रही है कि रनवे कंडीशंस. रनवे कंडीशंस कैसे कवर हो सकती हैं? और जो आपका डी आंसर, सॉरी ये आपकी बी आंसर चॉइस बोल रही है वो रनवे कंडीशंस बोल रही है, डी बोल रहा है रनवे. सो रनवे वाज कवर्ड, सो दैट इज द रीजन. आई होप बाहुबली आपको समझ में आ गया.
बाहुबली को समझ में आ जाए क्लास में, तो व्हाट एल्स डू यू वांट? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटे। अच्छा, एक इसका अभी तक आपने वी हैव हैड 3 सेशंस। एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया है, एक प्रोनाउन एम्बिग्विटी किया है, थर्ड मिसप्लेस मॉडिफायर्स किया है। यहाँ पर आप एक ये चीज नोटिस करोगे कि अगर आपको सेंटेंस में वर्ब्स अंडरलाइन मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर टेंसेस का। अगर आपको प्रोनाउंस अंडरलाइन मिल रहे हैं तो प्रोनाउन एम्बिग्विटी का होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट यूजुअली फ्रेजेस से स्टार्ट होता है तो वो एक मिसप्लेस मॉडिफायर का ज्यादातर क्वेश्चन होता है। सो व्हेनेवर यू आर मेक सॉल्विंग द क्वेश्चंस ना, क्योंकि अब आपको कैटेगरी वाइज तो मिलेंगे नहीं, हमें तो मिक्स बैग सेट क्वेश्चंस कोई लेबल करके तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ पर तो आपको फिर भी आसानी है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू लुक फॉर दीज इंपॉर्टेंट क्लूज। वर्ब्स अंडरलाइंड है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को चेक करो और टेंसेस को चेक करो। प्रोनाउंस दिख रहा है तो प्रोनाउन एम्बिग्विटी को चेक करो। अगर आपको कहीं स्टार्टिंग स्टेटमेंट, देखो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, ये फ्रेजेस से यूजुअली, मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैंडेट नहीं है, पर यूजुअली फ्रेज से स्टार्ट होता है। सो प्लीज कीप दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माइंड, राइट? फिर मैं आपको आगे पैरेलल स्ट्रक्चर और हो जाएगा तब आपको बताऊंगी। चलो इसको करो। प्रतीक्षा has done it with lightning speed, और एक्चुअली ये क्वेश्चंस इतने ही जल्दी होने चाहिए। वेरी गुड प्रतीक्षा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, और उतना कॉन्सेप्ट सीखो जितना इम्पोर्टेंट है, आपको ग्रामर एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको कहीं जाके वर्बल नहीं पढ़ानी है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। मेजरली द आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। Majorly the answers are correct and speed also has been good, right? Very good. अच्छा, प्रतीक्षा से पहले मुदित लक्ष्य गुड़िया ने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। वेरी गुड, चलो शाबाश। सो फाउंड इन द वाइल्ड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गुएना। पावरफुल बैक लेग्स थोड़ी फाउंड हो रहे थे, कंगारूज वर फाउंड जिनके पावरफुल बैक लेग्स थे। तो क्लियर इंडिकेशन है एबीसी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सीधा डी पर आ जाओगे। Right, these questions are very quick to solve, very interesting to solve, they are not going to consume a lot of time. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बाहुबली किसी को भी? एनीबडी? चलो गुड सत्यम, वेरी गुड। चलो ये करते हैं, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस नाउ। आराम से करो, सीखो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट आ गया तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे। वेरी गुड। चलो, तो मेजरली सी के साथ कंफ्यूजन था। दोज हु हैव आंसर्ड, वेरी वेरी गुड, शाबाश।
रिस्पॉन्डिंग टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हाई व्हीकल्स, द इंटीरियर्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? इंटीरियर लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे. Of the newest models are so luxurious that they sell for nearly twice the price of last year models. So who is responding? The sentence is not saying. And interiors so definitely are not responding. So A और B हट गया. सी और डी में दोनों में ऑटोमेकर्स इंट्रोड्यूस हो गए. ये बिल्कुल सही है. राइट राइट बिल्कुल. आई कुड अंडरस्टैंड लक्ष्य. सी और डी में कंफ्यूजन था सबको. सत्यम, किसको पोल शो नहीं हुआ? आपको पोल शो हुआ ना बाकी सबको? सत्यम आपके एंड पे कोई ग्लिच है क्या? क्योंकि आई थिंक सबको हुआ. एक बार रिफ्रेश करना या ऐप को अपडेट करना. ठीक है, नहीं तो सपोर्ट टीम से एक बार देखना अगर आगे वाले पोल भी नहीं दिख रहे तो. ठीक है, ऑटोमेकर्स हैव इंस्टॉल्ड. तो हमने क्या किया, देखो इन दोनों चॉइसेस ने एग्जिस्टिंग एरर को रेक्टिफाई कर दिया. तो मैंने अभी आपको ग्राउंड दिया था कि एग्जिस्टिंग एरर रेक्टिफाई हो जाए और कोई न्यू एरर ना इंट्रोड्यूस हो. सो पहले उसको चेक करते हैं कि कोई नया एरर तो नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा. सो देखो, ऑटोमेकर्स हैव इंस्टॉल्ड इंटीरियर्स इन द न्यूएस्ट मॉडल दैट आर सो लग्जूरियस दैट दे सेल. दे क्या है यहाँ पर? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सेड कि मैम मॉडल्स होगा दे. तो ये आपका लॉजिक है, राइट? अगर आपने प्रोनाउन एम्बिग्विटी की क्लास अटेंड करी थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मिस सैली गेव हेलेन हर बुक, या ऐसा कोई एक एग्जांपल दिया होगा. तो मैंने यहाँ पे कहा था कि सैली ने हेलेन को अपनी बुक दी या हेलेन की खुद की बुक थी. तो हर किसको रेफर कर रहा है, हेलेन को या सैली को? ये क्लियर नहीं है. तो ये प्रोनाउन, हाँ परफ्यूम, राइट मुदित, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ ऐसा कोई था, करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली प्रोनाउन एम्बिग्विटी. अब दे में ऑटोमेकर्स भी तो प्लूरल टर्म है और इंटीरियर्स भी प्लूरल टर्म है और मॉडल्स भी प्लूरल टर्म है. तो दे किसको रेफर कर रहे हैं? आप लॉजिक से तो ऑफकोर्स निकाल लोगे पर सेंटेंस क्लैरिटी देना चाहिए. तो सी वो नहीं दे रहा, इसलिए हम डी को पिक करेंगे. Is this clear? Is this clear to everybody? Quickly give me a thumbs up. समझ में आ गया? So yes, there were two errors here. Good Satyam, very good. Shabash. Thank you so much for the response. Chalo, let's quickly do this. थोड़ा सा ट्रिकी है. गुड श्वेता, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. थैंक यू सत्यम. एक बार ये इस पे पोल नहीं करेंगे, आप मिलके करेंगे. आप एक बार इसको ट्राई करो, थोड़ा सा ये ट्रिकी है. गुड जयदेव, एक बार देखते हैं सब रिस्पॉन्सेस और आ जाए. ये ट्रिकी तो मॉडिफायर्स होते नहीं है. मॉडिफायर्स आर इजी क्वेश्चंस, राइट? मॉडिफायर्स में सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. लॉजिक, कई बार क्या होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस कर देते हैं. अब उसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप लॉजिकल हो तो ऑफकोर्स आप तो राइटली इंटरप्रेट करोगे. बट यस, यू हैव टू गो एज पर द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, आप रॉक स्टार्स हो गए हो. आप सारे आंसर्स अच्छे से करते हो. वेरी गुड. Previously considered to have been extinct, a group of biologists rediscovered the new Daledonia crested gecko in 1987. So रीडिस्कवर किया तो पहले क्या कंसिडर किया जा रहा था? एक्सटिंक्ट होना. न्यू डैलेडोनिया ही कर रहे थे. तो ये किसको टच कर रहा है? बायोलॉजिस्ट को. तो बायोलॉजिस्ट वर नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट. तो ए और बी एलिमिनेट हो गया. इसका कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट में एरर देखिए, वो चॉइस एलिमिनेट करिए. यूजुअली ए अंडरलाइन पोर्शन है. कई बार ऐसा होता है, कई बार वेरी भी कर देते हैं. तो यू हैव टू सी. लक्ष्य, दूसरों के कमेंट आप तब देख सकते हो जब आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो. कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है? सो 1987 द न्यू डैलेडोनिया. सो इन 1977 ने ये फ्रेज को किसी को टच करना पड़ेगा. तो फिर लक्ष्य क्यों नहीं दिख रहा? आप कैट की क्लास में हो ना लक्ष्य, इसलिए ये कैट के हेडिंग में आ रही है क्लास. ठीक है? So in 1987 same error है. So the correct answer choice is E. Process of elimination करिए, very quickly you are going to reach to the answers. Approach correct रखोगे तो question हो जाएगा. चलो इसको करो.
ये आप कह रहे हो तो प्रीवियसली कंसिडर्ड ईयर एक्सटेंड नहीं हो सकता ना निर्भय। एक्सटिंक्ट कौन हो रहा है? मॉडिफायर तो उस फ्रेज को टच करेगा ना बेटा। निर्भय समझ में आ गया? चलो शाबाश। ओके So, Italian luxury brands have succeeded in getting people who might have once thought the cars were out of their league in buying and leasing some snazzy rides. In buying and leasing some snazzy rides, I hope ये error दिख गया है सबको. Right? Nirpsi correct answer है. Right? So have succeeded in getting people who once might have thought the cars were out of their leagues to buy and lease some snazzy rides. राइट. सो हैज सक्सीडेड वुड बी इनकरेक्ट. ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर हो गया. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स हैव अ क्विक पोल. समझ में आया आपको क्या होता है मिसप्लेस मॉडिफायर, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? आई होप, आई मीन आई डिड कीप द सेशन टू द पॉइंट सिर्फ इसी रीजन से ताकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, फालतू की डेफिनेशंस पे टाइम नहीं खराब करना. ठीक है. सो ये टेलीग्राम चैनल है आईपी मैट बीबीए होटल मैनेजमेंट का. यू नो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. 8 AM कल सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. 9 AM पे स्पेशल क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. 2019 होपफुली स्लॉट 1 कल कंप्लीट हो जाएगा. आज देखते हैं कितना टाइम होता है. यूजुअली आई डू, आज भी मैं एक पैसेज करूंगी. आज थोड़ा सा पेस करके करेंगे और देखेंगे 2 इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इवनिंग में पैरा जंबल्स कर रहे हैं. प्लीज डू ज्वाइन, एवरीबडी शुड बी देयर. वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. टीटा करेंगे, कॉन्सेप्ट 10-15 मिनट्स डिस्कस करेंगे, फॉलोइंग इट विथ क्वेश्चंस. ठीक है. सो एवरी डे वी आर गोइंग टू मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को पिक करेंगे और सैटरडे को उसका क्विज किया करेंगे. सो दैट्स द प्लान, ताकि आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच और प्रैक्टिस मिल जाए. ठीक है. And in case there are any aspirants who are going for IP MAT or DUSAT 2023, the program has already started from 28 July. 31st July से 1 year batch has already been started. Again, top trainers. Features are amazing. Live interactive sessions. Every 4th session is a doubt. You can watch the recorded lectures as many times as you want. You can practice full lengths. There are daily sectional tests and you have access to all the notes from one place. So this offer has been expired and this is the test series. तो इसको आप definitely किया करो. IP MAT वाले, CAT वालों का भी schedule launch कर दिया. In case you are planning to buy the subscription, please use the code JNLife10 to get a 10% off. Okay. And this is an academy का नया channel for IP MAT BBA. You can please like and subscribe. So I hope you found the session useful. Please see me at 9 so that we discuss reading comprehension previous year questions. Please take good care of yourself. Work very, very hard. Time is very less for us. So we have to give our heart and soul. Okay. God bless you. Please take care.